मां कसम, मैं आखिरी बार फिर से कहता हूं कि तुम लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, नहीं तो मैं चुन चुन के एक एक से इस चैनल को सब्सक्राइब करवाऊंगा। हाँ। Hello students, good morning. You have already completed the 2.2. Today we start the 2.3. That means what is the meaning of twins? In Hindi, twins means जुड़वा या जुड़वे. Then two babies born at the same time to the same mother are called twins. Okay? Chit chat, here come here at the page number 57. Chit chat, two babies born at the same mother are called twins. Take the guess and share who are triplets. Triplets, when the three babies born at the same time to the same mother, they are called triplets. And quadruplets means when the four babies born at the same time with the same mother, then they are quadruplets. Quintuplets, five babies born at the same time to the same mother are called quintuplets. Okay? So now you have guessed all the meaning even in the textbook. Now chit chats. Number second, imagine you had an identical twins, brother or sister. Imagine and share with your classmates what pranks you two could play on your friends, elders, in the family and even in school. मीनिंग क्या हो गया कि तुम्हारा एक जुड़वा भाई या बहन है, तो कल्पना करो और शेयर करो, आपस में बांटो विथ योर क्लासमेट्स व्हाट प्रैंक्स, अपने सहपाठियों के साथ शेयर करो कि व्हाट प्रैंक्स यू टू वुड प्ले ऑन योर फ्रेंड्स, एल्डर्स एंड इन फैमिली एंड इवन इन स्कूल्स. अर्थात विद्यालय के लोगों से, साथियों से, मित्रों से काल्पनिक वर्णन करके आपको बताना है कि आप किस तरह से मजाक कैसे करेंगे. अगर जुड़वा है तो जुड़वे टाइप का मजाक आप कैसे करेंगे. हाँ, there is a story of Om and Som. They were also twins. They always play with her together. One day they went in a garden and Om broke in the mangoes climbing up a tree. And when the owner came in the garden, they saw and climbed down quickly and ran away. Oh, the owner followed them and went to their home. He became angry at the boys and recalled his parents. When his parents came, he complained about that your son has broken the mangoes from my tree. They both were called out, and his father asked the owner, which one has broken the mango? Which one has broken the mango? He was confused, either Om or Som. He watched curiously, glared at their faces one by one, but he was unable to recognize them. And when his father asked who has broken the mangoes, Om
said to his Som told her father that Som has broken. Som told his father that Om has broken. I haven't. After some time, the owner saw the curiously both the faces and he laughed. He began to laugh, and they forgot the mangoes. तो ऐसे फ्रेंड्स बहुत सारे होते हैं, मजाक बहुत सारे ऐसे हो सकते हैं, ट्विस्ट कर सकते हैं, एक ही जगह दूसरे को ले लेते हैं। हाँ, इसने किया उसका देखा, उसने किया तो किसने किया पता ही नहीं चलता कि किसने किया, ऐसे मजाक हो सकते हैं। तो पॉइंट्स एट होम इसमें दिया गया, जैसे ब्लेम योर ट्विन्स ब्रदर फॉर द रॉन्ग ब्रेकेज डैमेज डन बाय यू। आपने घर में कुछ नुकसान कर दिया तो ब्लेम अपने भाई पर डाल सकते हैं, घर में ऐसा कर सकते हैं, मैंने नहीं, उसने तोड़ा है। बट ईट ही स्वीट्स, उसका मिठाई खा ले जाने का, हाँ दिया गया उसका है, उसका शेयर खा ले गए, फिर बाद में आकर मेरा शेयर दो तो पहचान में तो आए नहीं, तो अपना भी खा लिया, भाई का भी खा लिया, ऐसा भी हो सकता है। तो if one did something special good, the other pretends as if it is done by him. किसी ने दूसरा अच्छा काम किया तो ऐसा बहाना बनाना कि मैंने किया, तो ये सब कुछ है। Actually, it is impossible that the family member always identify the twins. They cannot mistakenly taken one another. एक दूसरे को गलत से नहीं ले सकते, उनको मालूम हो जाता है। बट इन द पब्लिक इट में सो ऐसा हो सकता है, पब्लिक में को ना पहचान पाए, तो घर पर थोड़ा सा कम चांसेस है। इन द स्कूल वन मेक्स मिस्टेक इन द क्लास एंड पॉइंट हिज फिंगर एट द अदर। द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट हु हैज डन इट, तो the one point out his finger, ma'am please, ऐसा बता सकता है कि उसने किया, मैंने नहीं किया, तो हो सकता है इस तरह से मिस्टेकली आप प्रैंक्स कर सकते हो। नेक्स्ट वन, स्टडी द फॉलोइंग पेयर्स और ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स, कप एंड सैसर, निडल एंड थ्रेड, बर्ड्स एंड बास्केट, टेक ए रिस्क, सिप टी, कॉफी और हाइड एंड सीक एक्सेट्रा। ये सब कोलोकेशन कहे जाते हैं, जुड़वे शब्द हैं। श्याम जी, दीज वर्ड्स आर कॉल्ड कोलोकेशन इन इंग्लिश लैंग्वेज। युग्म शब्द युग्म पढ़ा होगा आपने। तो बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अकेले यूज करने पर उनका मीनिंग नहीं आता है, वो डबल ही यूज होता है, दो वर्ड्स में यूज होते हैं तब उनका मीनिंग आता है, समझा? तो ये ऐसे ही है। कप एंड सैसर, कप और प्लेट कहते हैं ना, कप प्लेट। निडल एंड जो सुई धागे का संबंध है, मतलब एक से दूसरे चिपके रहते हैं, ऐसा हमेशा साथ में रहते हैं। तो बर्ड्स एंड बास्केट, टेक ए रिस्क, ये सब जोड़े में सब प्रयोग होते हैं। दीज आर सेट्स ऑफ वर्ड्स दैट मोर देन ऑफन गो टुगेदर, कहते हैं ये शब्दों के सेट्स हैं, शब्दों के सेट हैं मतलब जोड़े हैं, शब्दों के जोड़े हैं जो अक्सर एक साथ प्रयोग किए जाते हैं। एंड ऑकर टुगेदर, एक साथ घटित भी होते हैं, यूज में भी आते हैं। वी कॉल सच सेट्स कोलोकेशन, ऐसे सेट्स को हम क्या कहते हैं? कोलोकेशन। कभी कभी आता है फिल इन द ब्लैंक्स विद द यूजिंग कोलोकेशन, या मेक द कोलोकेशन वर्ड्स फ्रॉम दिस, इनसे कोलोकेशन बनाई, तो इस शब्द युग्म बनाने होते हैं। तो इंसर्ट द प्रॉपर वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट टू फ्रॉम कोलोकेशन। यहाँ पर देखो दिया है अफोर्ड, टाइम, डिफीट, क्लॉथ्स, ओनर्स, नेसेसरी, रोड, इंटरव्यू, मॉर्निंग, गोल्ड, इस तरह के वर्ड्स हैं। तो कह रहा है कि इनसे कोलोकेशन आप बनाइए, यहाँ पर प्रॉपर शब्द को इंसर्ट करिए जिससे कोलोकेशन बने। जैसे है ऑब्सोल्युटली, ऑब्सोल्युटली नेसेसरी, बिल्कुल
अत्यावश्यक जिसको कहते हैं, तो एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिल्कुल ही गलत बोल सकते हैं। एब्सोल्युटली नेसेसरी के साथ एब्सोल्युटली लगता ही है, एब्सोल्युटली नेसेसरी बतो NECSSARY। We cannot afford AFFORD, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, इतना खर्च नहीं बहन कर सकता, नहीं सहन कर सकता। कैन नॉट के साथ अफोर्ड आता है। फॉर्मल क्लॉथेस, फॉर्मल गैदरिंग, फॉर्मल, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, लेकिन ज़्यादातर क्लॉथेस के साथ आता है फॉर्मल क्लॉथेस। जॉब इंटरव्यू, जॉब इंटरव्यू लिखा, पास टाइम, टाइम पास, पास टाइम कहते हैं ना। फिर एक्सेप्ट डिफीट, एक्सेप्ट डिफीट, अर्ली मॉर्निंग, आगे पीछे कहीं कहीं जुड़ करके सब बदले हैं, जहाँ जब जोड़ना वहाँ पर ज़्यादातर आगे का दिया है आपको। अर्ली मॉर्निंग लिखा, कैच अ कोल्ड, लीडिंग रोल, अग्रणी भूमिका, सबसे आगे जो भूमिका निभाता है महात्मा गांधी ने, लीडिंग रोल इन द फ्रीडम ऑफ इंडिया ना। ज्वाइंट ओनर्स, लिखा। आगे है एग्जैगरेशन और ओवर स्टेटमेंट ऑफन काजेस ह्यूमर। एग्जैगरेशन मतलब अतिशयोक्ति होना, किसी चीज की बहुत बड़ी चढ़ी मात्रा को बोलना अतिशयोक्ति होता है। इतना बढ़ाना कि उसमें सच्चाई की वास्तविकता की कमी आ जाए, सच्चाई की कमी, ऐसा लगने लगे कि ऐसा नहीं हो सकता, वो क्या है एग्जैगरेशन। और ओवर स्टेटमेंट, कोई भी बात बहुत बढ़ा चढ़ा करके कह दी जाए। ऑफन काजेज ह्यूमर, तो इससे ज़्यादातर ह्यूमर आता है, मनोविनोद मिलता है, हंसी मजाक है, मनोविनोद आता है। फॉर एग्जाम्पल प्लांट के लिए सी इज थिन एज ए पिन, सी इज थिन एज ए पिन, वह इतनी पतली है जितनी की सुई, अर्थात सुई की तरह पतली। कोई आदमी सुई की तरह पतला हो सकता है? हाँ, कोई हड्डी सुई जितनी पतली होती है, आदमी शरीर में कोई तो एक हड्डी होगी, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। ये केवल उपमा देते हैं, अर्थात बहुत पतली है, दुबली है तो आदमी कर सकता है। सी इज थिन एज ए पिन, मजा लेने के, इतनी पतली है जैसे सूजी, जैसे लकड़ी, जैसे बोलते हैं ना, तो होता है। तो ही हैज ए पेन साइज्ड ब्रेन, सॉरी ही हैज ए पी साइज्ड ब्रेन, अर्थात उसका दिमाग मटर के आता है। यहाँ पर मतलब कम दिमाग का है, बर्ड ब्रेन से कर सकते हैं, सूक्ष्म दिमाग का आदमी। फिर माई शूज आर किलिंग मी, माई शूज आर किलिंग मी, मेरे जूते मुझे मार डाले जा रहे हैं। तो जूता तो मार सकता नहीं है, अर्थात ट्रबल दे रहा है, परेशान कर रहा है, काट दिया होगा पैर वगैरह को, तो हम ऐसा कर सकते हैं। अनुज ऐसे बैठता है जैसे श्याम से कोई दुश्मनी है, उसका मुंह मुझे न देखे ऐसे बैठता है। पता नहीं क्या दुश्मनी लेकर बैठा है। हाँ, अंदर से दोस्ती नहीं है कि वो जब रुकी जा रहा है जैसे बिहार जा रहा है। काश मैं महाराष्ट्र में होती नहीं रहूँगा तो बोला तो मैं क्या करूँगा, मेरा क्या काम, ये भी जा रहा है। अब उसको सुन लिया, चल तो कहा कि ऐसे एग्जैगरेशन जो है या ओवर स्टेटमेंट जो इसमें आपने पढ़ा, इसको हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार है। हिंदी में
जैसे एक दिन राम पतंग उड़ाई देवलोक को पहुंची जाई। राम ने दिन पतंग उड़ाया, धरती पर अयोध्या में से चला गया, देवलोक मतलब स्वर्ग तक पहुंच गया। पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है। आपने साइंस में पढ़ा है, श्याम उस दिन हमको पढ़ा रहा था साइंस की। सर देखिए, वातावरण में एक लेयर तक के हवा है, इसके बाद हवा नहीं है। तो जब उसके ऊपर हवा नहीं है तो कोई चीज़ उड़ेगी कैसे, आगे बढ़ेगी कैसे? फिर ग्रेविटी का एक लेयर तक भी उसका असर है, इसके बाद ग्रेविटी नहीं है तो ऊपर जाएगी कैसे? धक्का कौन देगा? धागे से धक्का लगेगा क्या उतना ऊपर तक जाने की? ये सब क्या है? हाइपरबोल है। इट इज नॉन अदर देन हाइपरबोल, कुछ और नहीं है केवल हाइपरबोल। तो व्हेन सच एग्जैगरेशन लाइन्स ओकर इन पोएट्री, जब ऐसे लाइन्स पोएट्री में आते हैं, कविता में आता है, दे आर एग्जाम्पल्स ऑफ द फिगर ऑफ स्पीच हाइपरबोल। तो हाइपरबोल अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। कंप्लीट द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरबोल यूजिंग वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स बिलो। नीचे दिया गया है, इनका इस्तेमाल करके आपको क्या करना है? हाइपरबोल को भरना है। तो इसमें है सी स्वेप्ट ऑफ टीयर, हाँ वो उतना रोई कि समुद्र भर गया, एन ओशन ना भर सकते। सी वेप्ट एन ओशन ऑफ टीयर, उसके आंखों से आंसुओं के सागर निकल गए। तो सागर निकाल सकता है क्या आंसू? चाहे जितना रोए, एक कप भरने में कितने देर लग जाएगी। नेक्स्ट, द हंग्री मैन एट ए ऑफ फूड, एक टन ऑफ फूड, भूखा आदमी 1 टन भोजन कर गया। उसका वजन ही नहीं उतना, 1 टन का आदमी नहीं होता है, उतना खाना कैसे खाएगा? He runs faster than a horse. क्या था? I am freezing to death. ना? फिर I shall come over in just a second. हो गया? Now start the main chapter by Prince. In this poem, the writer Henry Sambrook Leigh had composed a poem of twins. The narrator was one of a pair of twins. The narrator said that he was himself a pair of twins. The narrator was one of the pair of twins. Right from his birth, he and his brother were similar in form and feature, face and limbs. The resemblance was so close that people began mistaken one to another. Now, let's start the study of this poem. Some meanings which is written in bold text. The meaning of these words written inside the page. You may easily read them and understand the meaning. Form and feature means structure and appearance. Taking means आप mistaking है. If and if relative speech limit heights etc. Then you are asked a question in what aspects were the brother like each other. You have to tell the answer of this question. So keep in mind the question. You have to start the study of the poem. Okay? Let's go ahead. In form and feature, face and limb, I grew so like my brother that focus God takes me from for him and each for one another. It puzzles all our kith and kin. It reaches a fearful pitch. For one of us was born a twin, and not a soul knew which. I have told you before that the narrator was born as a twin.
they were very similar to each other in face and feature, form and feature, face and name. Therefore, all the people and his relatives mistakenly taking one another, एक दूसरे को ले लेते थे, ऐसा बताया गया। फॉर्म एंड फीचर, आकार प्रकार और मुखाकृति से, फेस एंड लिप, फेस मतलब चेहरे से और हाथ पैर से, लिप मतलब पार्ट्स ऑफ बॉडी, लिप मतलब हाथ पैर होता है, एंड फीट एक्सेट्रा। तो आकार प्रकार और चेहरे से, चेहरे तथा हाथ पैर से या अन्य अवयवों से, आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई से अत्यधिक मिलता जुलता पैदा हुआ। आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, मैं बिल्कुल ही अपने भाई से मिलता जुलता पैदा हुआ था। दैट फोकस गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, फोकस मीन्स पीपल एंड फोकस गॉड टेकिंग मी फॉर हिम। जब भी लोग आते थे या मुझे देखते थे, फोकस गॉड टेकिंग मी फॉर हिम, तो लोग उसकी जगह पर मुझे मान लेते थे, लोग उसकी जगह पर मुझे मान लेते थे, एंड ईच फॉर वन अनदर, और उसको मेरी जगह पर मान लेते थे। हम दोनों ने एक को दूसरे की जगह पर मान लिया करते थे। इट पजल्ड ऑल आवर किड एंड किड, तो इट पजल्ड, क्या पजल्स, ये रिजेम्बलेंस जो है, गहरी समानता, रिजेम्बलेंस मीन्स सिमिलरिटी, डीप सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस ये गहरी समानता, पजल्ड ऑल आवर किड एंड किड, हमारे सभी रिश्तेदारों को, किड एंड किड मीन्स रिलेटिव्स को परेशान कर रखा था, उलझन में डाल रखा था। पजल्ड मतलब एम्बैरेस करना, उलझन में डाल देना। हमारी ये गहरी समानता हमारे रिश्तेदारों को भी उलझन में डाल रखी थी। इट रीचेज ए फियरफुल पिच, कहा कि इट रीचेज ए फियरफुल पिच, यह एक भयंकर स्थिति में पहुंच गई। यह पिच का मतलब लिमिट हाइट, कहा कि समानता की ऊंचाई, हाइट इतनी अधिक बढ़ गई कि ये फियरफुल हो गया, भयंकर स्थिति में पहुंच गई हमारी समानता। और वन ऑफ अस बार में, हममें से, क्योंकि हममें से कोई तो एक जुड़वा पैदा हुआ था, एक तो पैदा हुआ और फिर दूसरा जो पैदा हुआ वो जुड़वा हुआ। पहले वाला तो जुड़वा हुआ नहीं, पहले वाला पैदा हुआ अकेला, दूसरा जो पैदा हुआ जुड़वा वो बना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो राइटर कहता है कि आई ग्रीव सो लाइक माई ब्रदर, मैं अपने भाई से मिलता जुलता पैदा हुआ। तो एक्चुअली अगर देखेंगे तो राइटर भी जुड़वा होता है, ऐसा लगता है कि राइटर ही जुड़वा होता है। तो कहता फार वन ऑफ अस वाज बॉर्न, हम में से तो कोई एक जुड़वा पैदा हुआ था, इट नॉट ए सोल न्यू विच, लेकिन यहाँ तक कि कोई भी व्यक्ति, नॉट ए सोल, कोई भी व्यक्ति, नॉट ए सिंगल पर्सन कैन टेल हु वाज द ट्विन, कोई भी व्यक्ति नहीं जानता था कि हम में से जुड़वा कौन था। समझ आया सब? देखिए भोजपुरी इसमें आके समझ में आया, बहुत से आदमी नहीं बोलना चाहिए, बट one day to make the matter worse, before our names were fixed, as we were being watched by nurse, we got completely mixed, and thus you see my fate's decrees, or rather message him, my brother John got christened me and I got christened him. Writer announced that one day just before their christening, as they were being watched by the nurse, christening means नामकरण करना, कहता कि एक दिन to make the matter worse, ये मामला और भी बिगड़ गया, यह बात और भी गड़बड़ हो गई, before our names were fixed, हमारे नामकरण किए जाने से पहले। क्या हुआ? as we were being watched by nurse, जब हम लोग दाई के द्वारा नहलाए जा रहे थे, या दाई नर्स जो है जब हम लोगों को नहला रही थी, we got completely mixed, तो हम बिल्कुल ही घुल मिल गए,
हम बिल्कुल ही घुल मिल गए। फिर एंड thus you see my faith decreased and other nurses win। तो अब चाहे आप इसे भाग्य का खेल कहें, एड्स ऑफ डिक्रीज, भाग्य का खेल कहें, रादर नर्सेस विन, अथवा दाई की सनक कहें, दाई का पागलपन कहें, अथवा इसको भाग्य का खेल कहें। माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरे भाई जॉन को का नाम मेरा पड़ गया। माय ब्रदर जॉन गॉट क्रिश्चियन मी, मेरा भाई जॉन को मेरा नाम मिल गया। मतलब जॉन उसका नाम रखा जाने वाला था राइटर का, तो वो नाम उसके भाई का रख दिया गया। मेरा भाई जॉन, मेरा नाम मेरा भाई जॉन का नामकरण मेरा कर दिया गया। एंड आई गॉट क्रिश्चियन नेम, और उसका नाम मुझे दे दिया गया। स्कूल हैटल मतलब जानलेवा होता है। हैटल मतलब जानलेवा। दिस हैटल लाइकनेस, ये मतलब हैटल मतलब जानलेवा समानता, लाइकनेस में सिमिलरिटी, रिजेम्बलेंस, इवन ऑफ माय फूड स्टेप्स व्हेन आई एट स्कूल, यहाँ तक कि स्कूल तक मेरा पीछा करती रही। मेरी यही समानता या जानलेवा सिमिलरिटी, जब हमारे कदम स्कूल में पड़े तब भी हमारे पीछा करती रही, पीछा नहीं छोड़ी। एंड आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लैग फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, कहता है क्या फॉर जॉन टर्न आउट ए फूल, जब कभी भी जॉन कोई शरारत करता, मूर्खतापूर्ण कार्य करता, तो आई वॉज ऑलवेज गेटिंग फ्लैग, तो कोड़ों से मेरी पिटाई हो जाती थी। हाँ, मैं कोड़ों से हमेशा पिट जाया करता जब मेरा भाई जॉन कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता। समझा? But I took this question fruitlessly। कहता है कि कब फिर मैं बिना मतलब के भी अकारण, फ्रूटलेस मीन्स बिना किसी कारण के, वर्थलेसली, फ्रूटलेसली, यूजलेसली, बेवजह बिना मतलब का भी, औचित्य हो चाहे ना हो, बेवजह भी मैं यह प्रश्न लोगों से पूछता। आई पुट दिस क्वेश्चन फ्रूटलेसली, मैं कारण ही बेवजह ही लोगों से प्रश्न पूछता कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी, कि आप क्या करते अगर आप मेरी जगह पर होते। इसलिए टू प्रूव दैट यू वेयर यू, यह सिद्ध करने के लिए कि तुम ही तुम हो, यह सिद्ध करने के लिए तुम क्या करते। हाँ, जैसे जॉन है, जॉन का भाई है, वो राइटर कहता है, हेनरी समब्रुक उसका नाम लिखा दिया गया ना पन, हेनरी समब्रुक कहता है कि अगर आप मेरी जगह पर होते और इतनी सिमिलरिटी होती तो आप हेनरी समब्रुक हो, यह सिद्ध करने के लिए आप क्या करते। आप क्या करते हैं सिद्ध करने के लिए कि तुम ही तुम हो, तुम ही हो, या सिद्ध करने के लिए तुम क्या करते अगर आप मेरी जगह पर होते। समझे इसका पैसेज का मतलब समझ में आया? कहा कि मेरी समानता ने स्कूल तक मेरा पीछा किया। जब मेरे कदम स्कूल में मिस हमारा दाखिला स्कूल में भी हुआ तो भी असमानता हमारी पीछा करती रही, और जब कभी भी मेरा भाई जॉन कोई मूर्खतापूर्ण कार्य करता तो कोड़ों से मेरी पिटाई हो जाती। तो मैं निराश होकर के अकारण ही लोगों से प्रश्न पूछता, टू एवरीवन मींस सबसे, जिस किसी भी व्यक्ति को मैं जानता था, टू एवरीवन आई न्यू, जिस आदमी को मैं जानता पहचानता था वो सभी आदमी से एक मतलब का अकारण ही प्रश्न पूछता कि व्हाट वुड यू डू इफ यू वेयर मी, अगर आप मेरी जगह होते तो टू प्रूव दैट यू वेयर यू, तो यह सिद्ध करने के लिए कि तुम ही तुम हो, इसके लिए आप क्या करते। नेक्स्ट है आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड ऑफ माय डोमेस्टिक लाइफ। श्याम, ये बहुत गलत हुआ है। कहा कि आवर क्लोज रिजेम्बलेंस, हमारी इतनी गहरी समानता ने टर्न द टाइड ऑफ माय डोमेस्टिक लाइफ,
मेरे घरेलू जीवन में उथल पुथल मचा दिया, मेरे वैवाहिक जीवन में भी उथल पुथल मचा दिया। टर्न द टाइड मीन्स चेंज द सिचुएशन, स्थिति बदल दी। आवर क्लोज रिजेम्बलेंस टर्न द टाइड, हमारी गहरी समानता ने हमारे घरेलू जीवन में अर्थात शादीशुदा जीवन में भी उथल मचा दी। फॉर समहाउ, क्योंकि कैसे भी माई इंटेंडेड ब्राइड बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ, मेरी चाही जाने वाली दुल्हन जिसको मैं चाहता था, जिसको मैं पसंद करता था, मेरी पसंदीदा पत्नी मेरे भाई की पत्नी बन गई। मतलब उसकी शादी मेरे भाई से हो गई। हाँ, बिकेम माई ब्रदर्स वाइफ। इनफैक्ट समझ में आया, घरेलू जीवन सफल हो गया ना। कहा कि हमारी इस गहरी समानता ने हमारे वैवाहिक जीवन घरेलू जीवन में भी उथल मचा दिया, क्योंकि कैसे भी मेरी चाही जाने वाली पत्नी, मेरी पसंदीदा पत्नी मेरे भाई की पत्नी बन गई। और इनफैक्ट ईयर आफ्टर ईयर द सेम मिस्टेक्स वेंट ऑन, वस्तुतः वर्ष दर वर्ष इस तरह की मूर्खतापूर्ण गलतियां होती रही। एब्सर्ड मिस्टेक्स मीन्स पुलिसफुल मिस्टेक्स, इस तरह की मूर्खतापूर्ण गलतियां होती रही। एंड व्हेन आई डाइड, और जब मैं मर गया, द नेबर्स केम एंड बरीड माय ब्रदर जॉन, तो पड़ोसी आए, उन्होंने मेरे भाई जॉन को दफना दिया।